مجید کی ایک دعا ہے جو سواری پر سوار ہوتے وقت پڑھی جاتی ہے. آئیے اسے مل کر پڑھ لیتے ہیں. ویسے تو بھائی نے پڑھا دیے لیکن ہم اصول برکت کے لیے اسے دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. کوئی زبان خاموش نہ رہے, آگے سے لے کر پیچھے تک سارے مل کر شامل ہو جائیں. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سائلین کرام, الحمدللہ ہم اس وقت شہر مکہ کی مقدس مقامات کی زیارات کے لیے رواں دواں ہیں. ہماری آج کی جو پہلی زیارت ہے اس زیارت کا نام ہے جبل سور. کیا نام ہے زیارت کا؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. خوبصورت چہرے ہیں, ذرا خوبصورت سی آواز بھی آنی چاہیے. کیا نام ہے زیارت کا؟ جبل سور. جبل کہتے ہیں پہاڑ کو. اس پہاڑ کے اوپر ایک غار قائم ہے جس غار کو کہا جاتا ہے غار سور. اس غار سور کو نسبت حاصل ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کے ساتھ. جب حضور نے شہر مکہ سے مدینہ کے لیے ہجرت فرمائی تو 3 دن کا قیام فرمایا. کتنے دن کا؟ بولیں کتنے دن کا؟ 3 دن کا. اب میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے انشاءاللہ ہجرت کا واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. انتہائی ادب سے سنیے گا. تھوڑا سا فاصلے پہ ہماری زیارت ہے, انشاءاللہ پھر آپ کو زیارت بھی کروائی جائے گی. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت شہر مکہ میں ہوئی. حضور کا بچپن شہر مکہ میں گزرا. حضور کی جوانی شہر مکہ میں گزری. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے مبارک 53 سال, کتنے سال؟ 53 ایئرز آپ نے شہر مکہ میں گزارے. اب 40 سال کی عمر ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو آپ نے کفار مکہ کے سامنے اعلان نبوت فرمایا. یاد رکھیے گا, اعلان نبوت سے قبل مکے کے لوگوں کے یہ حالات تھے کہ وہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا کرتے تھے. اس قدر حضور ان کے درمیان صادق اور امین مشہور تھے کہ کافر اپنی قیمتی امانتیں بھی اللہ کے رسول کے پاس رکھواتے. قیمتی امانتیں حضور کے پاس رکھواتے. اب 40 سال کی عمر ہے حضور کی, تو وہ 40 سال کی عمر میں حضور نے اعلان نبوت فرمایا. جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو سارے کافر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے تھے. اب ان کے تیور بدل گئے, مزاج میں تبدیلی آ گئی. اب یہ حضور سے موج سے طلب کرنے لگے. کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں. اگر اللہ کے نبی ہیں نا, دعوے میں سچے ہیں, تو پھر درخت سے کہیے آپ کے نبوت کی گواہی دے. کس درخت سے؟ آپ مجھے بتائیں, درخت بولتا ہے؟ درخت پہ کلہاڑا چلائیں اس کی آواز آتی ہے, اسے آرے میں ڈال دیں وہ بولتا ہے؟ نہیں بولتا. لیکن معجزہ طلب کیا کافروں نے اللہ کے نبی سے. اگر آپ نبی ہیں, سچے ہیں, تو درخت سے کہیں آپ کے نبوت کی گواہی دیں. اپنی قسمت پر قربان جائیں, ہم ایسے لجپال نبی کے امتی ہیں. جب حضور نے درخت کو اشارہ کیا نا, تو درخت بھی جھک کر اللہ کے نبی کی نبوت کی گواہیاں دینے لگا. پھر وہ کافر کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں. اگر اللہ کے نبی ہیں تو ان پہاڑوں سے کہیے, ان کے چھوٹے چھوٹے پتھروں سے کہیے کہ یہ آپ کے نبوت کی گواہی دے. بڑا مشہور واقعہ ہے, ابو جہل کا بند مٹھی کے اندر اللہ کے نبی کی بارگاہ کے اندر چھوٹے چھوٹے پتھر لے کر آیا تھا اور کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں میں نبی ہوں, بتائیں اگر نبی ہے میری مٹھی میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تھا ابو جہل میں بتاؤ تیری مٹھی میں کیا ہے, یا جو چیز تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے میں کون ہوں. تو ابو جہل کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا ہو جائے جو چیز میری مٹھی میں ہے یہ بتائے آپ کون ہیں, یہ تو واقعی کمال کی بات ہے. پھر اللہ کے نبی نے نگاہ نبوت فرمائی. حضور کی نگاہ نبوت کا اشارہ پاتے ہی کافر کے بند مٹھی کے اندر چھوٹے چھوٹے پتھر بھی اللہ کے نبی کی نبوت کی گواہیاں دینے لگے. جب پتھروں نے بھی گواہیاں دی نا, تو کافر سمجھ گئے ہو نہ ہو یہ واقعی اللہ کے سچے نبی اور سچے رسول ہیں. کون ہے؟ اللہ کے سچے نبی اور
सच्चे रसूल हैं। ये जान गए, ये जानते हुए, ये समझते हुए वो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत पर ईमान नहीं लाए। अल्लाह अकबर। अब एक तो हुजूर पर ईमान नहीं लाए, दूसरा उन्होंने अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सताना शुरू कर दिया। मोहतरम ज़ायरीन किराम, अल्लाह अकबर। अब जरा गौर कीजिएगा, हुजूर को कितना सताया। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोगों को दीन इस्लाम की दावत देते तो काफिर बदबख्त अल्लाह के नबी का मजाक उड़ाते। मुमकिन है यहाँ पर हमारी गाड़ी पूरी आके तो यहाँ रुकेगी, नहीं तो इंशाल्लाह थोड़ा सा आगे जाके इंशाल्लाह हमारी गाड़ी पार्क होगी इंशाल्लाह। जरा बरकत की नीयत से दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो वो आईडी कार्ड गिरा तुम्हारा। से मौजज़ात ज़ाहिर हुए, दरख्त ने हुजूर की नबूवत की गवाहियाँ दी, पहाड़ों ने पत्थरों ने अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नबूवत की गवाहियाँ दी, तो काफिर समझ गए हो ना हो ये वाकई अल्लाह के सच्चे नबी और सच्चे रसूल हैं। ये जानते हुए, ये समझते हुए वो मेरे और आपके करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए, अब अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम की दावत के लिए मक्का की गलियों में जब निकलते लोगों को दीन इस्लाम की तरफ बुलाते, फिर भी काफिर बदबख्त अल्लाह के नबी का मजाक उड़ाते। कभी हुजूर मक्का की गलियों से गुजरते तो काफिर बदबख्त रास्ते में कांटे बिछा देते, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कांटों पर चलना पड़ता। कभी अल्लाह के नबी सहने हरम में होते, सर सजदे में होता, रब की पाकी और तस्बीह को बयान कर रहे होते, काफिर बदबख्त ऊंट की ओली उठा कर लाते और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ के ऊपर रख देते, जिससे हुजूर की पीठ भारी हो जाती, सजदा तब्दील हो जाता, लिबास मुबारक, जिस्म मुबारक खून से बन गया करता। हर नफ्स मोहतरम ज़ाहिरीन किराम, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन इस्लाम की राह में इतना सताया गया कि खुद हुजूर का फरमान है, फरमाया जितनी मुझे तकलीफ पहुंची, जितना मुझे सताया गया, न मुझसे पहले किसी नबी को सताया गया, न मेरे बाद क़यामत तक किसी इंसान को सताया जाएगा। अल्लाहु अकबर। काफिर सताते रहे, हुजूर दीन इस्लाम की दावत लोग अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। जब हुजूर पर ईमान लाए इतने सारे लोग, तो अब इन कुफार को खदशा लाहक हुआ कि हमने तो बड़ी रुकावटें डाली, लेकिन ये दीन इस्लाम है कि फैलता ही चला जा रहा है। अगर यूं ही सिलसिला चलता रहा तो एक दिन दीन इस्लाम गालिब आ जाएगा। जब ये खदशा लाहक हुआ तो उन्होंने जब आपने अपने घर से सफ़र का आगाज़ फरमाया ना, हुजूर ने घर का दरवाज़ा खोला, क्या देखते हैं कि काफिर घर का घेराव करके खड़े हुए हैं, घर का मुहासरा करके खड़े हुए हैं। हुजूर ने ज़मीन से रेत उठाई, सूरह यासीन शरीफ की चंद आयात बैजिनात की तिलावत की, उस खाक को हवा में उड़ाया, वो खाक काफिरों के सरों पर पड़ी। अल्लाह की कुदरत देखें, अल्लाह ने सारे काफिरों को अंधा कर दिया, उनकी आंखों की रोशनी ख़त्म हो गई। अब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान से निकलते हैं, जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में तशरीफ़ लाए।
जब जनाब सिद्दीक़ अकबर के घर में तशरीफ़ लाए, हुजूर ने फरमाया सिद्दीक़ अकबर हमें हिजरत का हुक्म हुआ है। तो जनाब सिद्दीक़ अकबर भी सामान सफ़र बांधते हैं और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने सफ़र का आगाज़ फरमाते हैं। मोहतरम ज़ाहिरीन किराम, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहर मक्का से मदीना की तरफ जाना था। कहाँ से कहाँ जाना था? मक्का से मदीना की तरफ जाना था। मदीने के सारे रास्ते बंद थे, कुफ़ार का सख्त पैरा था। माहिर तीर अंदाज अपनी कमानों में तीर डालकर निशाना बांध कर बैठे हुए थे कि कब अल्लाह के नबी हमला कर दें। तो हुजूर मदीने के रास्ते पर नहीं गए, बल्कि आपने इन बुलंद तरीन पहाड़ों का सफ़र किया, ये रेगिस्तान और जंगल का सफ़र किया। इसी पहाड़ जबल सोर पहाड़ के दामन में तशरीफ़ लाए। जब इस पहाड़ के दामन में हुजूर पहुँचे ना, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब सिद्दीक़ अकबर ये पहाड़ नजर आता है? हुजूर ने फरमाया जी हाँ। फरमाया इस पहाड़ की बुलंदी पर एक गार है, हमने उस गार में जाना है। जब हज़रत हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ये बात की हज़रत सिद्दीक़ अकबर से, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने निगाह उठाकर इस पहाड़ को देखा। जब पहाड़ को देखा ना, तो रूह तड़प गई, इश्क मचल गया। तड़पते हुए कहते हैं आका इस बुलंद तरीन पहाड़ पर? हुज़ूर ने फरमाया जी हाँ। कहा जाता है मक्के का सबसे बुलंद तरीन पहाड़ ये है। इस पहाड़ की जो हाइट और बुलंदी है वो है 5453 फुट की बुलंदी। कितनी बुलंदी है? 5453 फुट की बुलंदी। अब आप इस पहाड़ को देख रहे हैं, देखते जाइएगा। एक सेहतमंद नौजवान आदमी को आने और जाने के तकरीबन 5.5 से 6 घंटे का वक्त लगता है। लेकिन जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने देखा ना, तो तड़प गए। कहते हैं आका ये पहाड़ तो बहुत बुलंद है, इसके पत्थर भी नुकीले हैं, आपके पाँव बड़े नरम और नाजुक हैं, जाएंगे तो जख्मी हो जाएंगे। हुजूर ने फरमाया सिद्दीक़ अकबर क्या करें, जाना तो है। अर्ज़ करते हैं आका ऐसे नहीं, आपके लिए सवारी का इंतज़ाम होना चाहिए। हुजूर ने फरमाया सवारी कहाँ से लाओगे? जंगल बियाबान है, रेगिस्तान है, काफ़िले नहीं गुजरते, सवारी कहाँ से आएगी? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हुजूर के साथ अक़ीदत देखे, दोनों घुटने ज़मीन पर लगाकर बैठ गए। अर्ज़ करते हैं आका गुलाम की सवारी हाजिर है, सवारी को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह अकबर। अब हुजूर जनाब सिद्दीक़ अकबर के कंधों पर तशरीफ़ लाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने एड़ी उठाई, पंजों के बल चलते हुए इस बुलंद तरीन पहाड़ पर अल्लाह के नबी को लेकर जाते हैं। जब वहाँ पहुँचे ना गार के मुंह पर, तो हुजूर गार में दाखिल हुए, सिद्दीक़ अकबर भी गार में दाखिल हुए। एक मकड़ी आती है, वो जाला बुन देती है, मकड़ी जानते हैं ना, उसने जाला बना दिया। कबूतरी आई, उसने अंडे दे दिए। ये जितनी कबूतरों की बहार देखते हैं आप, मक्का की हर गली, मदीना की हर गली, जहाँ जहाँ आप जाएंगे आपको कबूतर नजर आएंगे। कहा जाता है उसी कबूतरी की आगे नस्ल चल रही है, उसी कबूतरी की नस्ल चल रही है। यही वजह है हमारे हाजियों के पास या दाना होता है, या खरीद कर वो दाना इन कबूतरों को सदका डालते हैं। आप में से जिनसे हो पड़े, अपनी जान का सदका, अपने माल का सदका, अपनी औलाद का सदका इस मुक़द्दस सरज़मीन को गवाह बनाकर ज़रूर निकालिएगा। अल्लाह हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आप ग्रुप की सूरत में, फैमिली की सूरत में वीडियो पिक्चर लेकर फ़ौरन से गाड़ी में आ जाएँ। इंशाअल्लाह आगे का वाक़या गाड़ी में आपके गोश गुजार किया जाए। बयान करता हूँ, अब माशाल्लाह बड़े जज्बे के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ सुन रहे हैं। मैं ज़रा थोड़ा सा आपको अर्थ लगा के चेक करूँगा कि आपकी तवज्जो भी पूरी है या नहीं। लगा लो, चले सवाल पे गौर कीजिएगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिस वक्त हुजूर को पहाड़ की बुलंदी पर लेकर गए, तो कैसे लेकर गए थे? अपने कंधों पर उठाकर। और जब पहाड़ की बुलंदी पर पहुंचे, गार में दाखिल हुए, फिर क्या हुआ था? जाल बुना गया। एक आवाज में बोला, मकड़ी ने जाल बुना और कबूतर ने अंडे दिए। चले ओके। अब तवज्जो मेरी तरफ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिस वक्त पहाड़ की बुलंदी पर पहुंचे ना, तो अल्लाह के नबी की खिदमत में अर्ज़ की, आका इजाज़त दीजिए मैं गार में दाखिल होकर इसकी सफाई करूँ। हुजूर ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को इजाज़त दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ गार में दाखिल हुए, आपने गार की सफाई की। जब गार की सफाई की ना, तो देखा गार के अंदर कुछ सुराख मौजूद है। सीरत की किताबों में दो बातें मिलती हैं, एक ये कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास चादर थी, दूसरी ये कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपना कुर्ता उतारा, इसके टुकड़े किए, सुराखों का मुंह बंद किया। सारे सुराख बंद हो गए, एक सुराख बाकी बच गया। कुर्बान जाए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की अदाओं पर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अपने पाँव की एड़ी रखकर सुराख का मुंह बंद कर देते।
सुराख का मुंह बन गया। अल्लाह के नबी की खिदमत में अर्ज की, आका अब गार के अंदर तशरीफ ले आए। हुजूर गार में तशरीफ ले जाते हैं। जब हुजूर गार में पहुंचे तो सिद्दीक़ अकबर के मुकद्दर फिर चमक उठे। अल्लाह के नबी ने गोद में सर रखकर आराम फरमाया। हुजूर सिद्दीक़ अकबर की गोद में सर रखकर आराम फरमा रहे हैं। सारे सहाबा में हजरत अबू बकर सिद्दीक का ये खासा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदों पर सवारी भी की और गोद में सर रखकर आराम भी फरमाया। अल्लाह अकबर। मोहतरम ज़ाहिरीन किराम, सीरत की किताबों में लिखा है इस गार में ना एक नीचे की हालत